प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। ओवरऑल ग्रोथ रेट्स काफ़ी सारे सेक्टर्स में दुनिया भर के देशों में धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि आगे चल के सेंट्रल बैंक्स, स्टार्टिंग विद द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स विच इज़ द फेड, ये उनका जो राइजिंग रेट का एक्शन है उसे पॉज करेंगे या अगले साल में रेट्स को कट करना शुरू करेंगे। पैसा जो बनता है ना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मार्केट कैप से नहीं बनता है। ये बनता है अच्छी कंपनी को अच्छे भाव पे खरीद के अच्छे समय तक उसमें इन्वेस्ट करने से बनता है। तो आपको अगर एक अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिल गए और आप इसमें 10-15 साल आप डटे रहे और इस कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रखा, it continues to deliver profits year on year over next 10, 15, 20 years. That's how money is made in those stocks. इसलिए अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 2013 में was the end of मंदी का cycle in India. 2013 के बाद our markets have actually risen very sharply with few intermittent phases of correction. But the bottom of our market in the last decade was 2013. So it was a great starting point. And in fact, small caps were far more cheaper. तो 2013 से 23 में स्मॉल कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप फंड्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स। कोविड के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स ने, जिनको स्टॉक मार्केट क्या है पता नहीं था, बट उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे बहुत कुछ सीख लिया या ना सीखे बिना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड वो एक ऐसा साल था जहाँ पे बाजार 100% से एक साल में ऊपर चला गया। तो एक इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है हम सबको कि मुझे स्टॉक मार्केट क्रैक कर लिया मैंने, पहले साल में मैंने 50 से 100% या 150% बना लिया। जबकि लॉन्ग टर्म में तो 12 से 15% ही बनता है स्टॉक मार्केट। दैट व्हेन वी इन्वेस्ट एंड वी सी फास्ट रिटर्न्स बीइंग मेड, we think it is our skill set which is making money, but it is actually the market becoming a bubble which is generating those returns. And generally after that you see the bubble crashing and NAVs falling and your portfolio values coming down. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं और हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द इंडस्ट्री टू हेल्प अस विद ऑल द क्वेश्चंस। तो आज भी हमारे साथ हैं समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हिज नेम इज मिस्टर कल्पेन पारिक। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DSP Asset Managers Private Limited and a member of the executive committee. Mr. Kalpen Parekh has over 19 years of experience in sales across client segments, distribution and marketing. He was previously managing director and head of sales and marketing at IDFC Mutual Fund. He has also served in Birla Sun Life Asset Management Company Limited and ICICI Prudential Asset Management Company Limited after beginning his career with L&T Finance. Mr. Kalpen Parekh holds a master's degree in management studies in finance from the Narsi Monji Institute of Management Studies, as well as a bachelor's degree in chemical engineering from Bharati Vidyapeeth, Pune. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. हम सब सारे एपिसोड्स में हम किसी इंटरेस्टिंग स्पीकर को लेके आते हैं to answer all the questions, and today we have with us Mr. Kalpen. He's very very well known in the mutual fund industry and he's the MD and CEO of DSP Mutual Fund. So Kalpen, welcome and thank you so much for giving us your time. Let's get started with the questions. Because we have a lot of questions lined up for you today, so I'm sure ये थोड़ा लंबा एपिसोड होने वाला है. Let's see. So, Kalpen, I think the first thing that we would like to ask all of you is regarding a little bit about the global economy. हम सब जानते हैं कि हम we live in a global world जहाँ पे everything is connected and most of the markets are coupled with each other. देखा जाए तो NASDAQ and S&P 500 surged to a 9-month closing high on June 1st, basically because of signs of slowing wage pressure, which was obviously leading to the fact कि शायद अब जो है फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक को पॉज करेगा. इसकी वजह से बहुत सारे टेक स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा किया है रिसेंटली. तो ये जो है इंडिया के लिए इज इट गुड न्यूज़ बिकॉज इंडिया इज द हॉटेस्ट इमर्जिंग मार्केट, एंड इसको क्या हम एक लीडिंग इंडिकेटर मान सकते हैं? Namrata, firstly, thanks for inviting me for this session. And पहला सवाल जो आपने पूछा है ये बहुत ही सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जबकि इन्वेस्टिंग इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. इन्वेस्टिंग के जो आउटकम है
उसमें ये पिछले 9 महीने या अगले 9 महीने के जो इवेंट्स है उससे जनरली हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारे इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो 10 15 20 साल का होता है। तो अगर आप इफ़ यू गो बैक टू 2013 what was happening in that era or in that year, none of us remember also. So the reason I'm just answering it this way is to tell you that most of these things don't matter when we progress on the time scale. और जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का समय या टाइम होराइजन लंबा होता है, ये इवेंट्स इरेलेवेंट हो जाते हैं। कमिंग बैक, ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में हमने ऐसी इवेंट्स देखी है जो हमने हमारे करियर्स या लाइफ स्पैन में नहीं देखी है, स्पेशली इफ इट इज़ पीपल लाइक मी। मैंने मेरा करियर 98 में शुरू किया था, और आपके बहुत सारे व्यूअर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी या जिनकी एज प्रोफाइल जो है वो सब 1980s के बाद के दौर की होगी। तो हमने जिस फेज़ में हमारा इन्वेस्टिंग करियर शुरू किया है वो फेज़ ऐसा था जब इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में नीचे आ रहे थे। तो वो अगर यूएस के बॉन्ड्स को हम देखें तो वो 5% पे थे, और वो नीचे में पिछले 1.5 साल पहले 0.5 तक आ गए थे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवर्सल हुआ 0.5 से ऑल द वे अप टू 4.5। right now the 10-year government bond in the United States is somewhere around 3.6 3.7, लेकिन वहाँ के जो 2 या 3 साल के बॉन्ड्स है वो अभी भी 5 या 5.5% पे है। तो हमने जब ये इंटरेस्ट रेट्स की वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ती है, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइसेस आर नथिंग बट उनके जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसका आज का डिस्काउंटिंग, और आज का जो डिस्काउंटिंग है वो आज के इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो ये जो डिस्काउंटिंग रेट पहले 1% पर आ गया था 2 साल पहले, ये आज 4% पे आ गया है। तो उसके चलते बाजार में बहुत सारा उथल पुथल हुआ है पिछले 2 साल में। नैस्डैक एक बार बीच में 25-30% से नीचे आ गया, यूएस मार्केट्स केम डाउन बाय 20%, फिर इंडियन मार्केट्स फेल बाय 15 to 18%। And again, they reversed their trajectory in the last 3 months. They've again moved closer to their all-time highs. तो और ये इसके वजह से हो रहा है शायद कि अभी पूरा जो मार्केट है ये मार्केट प्राइस कर रहा है कि आगे चल के, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स है वो सब वीक हो रहे हैं। प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, ओवरऑल ग्रोथ रेट्स काफ़ी सारे सेक्टर्स में दुनिया भर के देशों में धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि आगे चल के सेंट्रल बैंक्स, स्टार्टिंग विद द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स विच इज़ द फेड, ये उनका जो राइजिंग रेट का एक्शन है उसे पॉज करेंगे या अगले साल में रेट्स को कट करना शुरू करेंगे। और ये ओपिनियन रखने के वजह से फिर से काफ़ी सारा पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ टर्न हुआ है, और जिसके वजह से प्राइसेस हैव गॉन अप। So many times, I always feel that I may give you many logical reasons to connect the price movement of the market with all these variables, but the reality is only one, that there is more money chasing stocks, and demand is more than supply, and hence stock prices are rising. And the same could reverse tomorrow also, where less money starts chasing stocks and stock prices will come down. So I'm only trying to highlight that these trends will keep changing every few years. And I feel very comfortable investing when prices are falling, to be honest, rather than when they are rising very sharply. Because when prices are rising very sharply, आपके future returns को वो upfront कर देता है, क्योंकि आप वो same asset class को महंगा खरीदते हो। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। No, absolutely. I mean, that's a given. But I guess investing is also a lot about investor behavior, right? और अगर आप market को positive trend में देख रहे हो तो शायद आपको लगता है कि what you're saying is absolutely right. लेकिन from an investor's point of view, I think एक positive trend वो motivation देता है for you to be a part of the market. That's about it, right? Sure. Okay. So अगर देखा जाए तो stronger than expected fourth quarter, जिसकी वजह से India's GDP touched a 7.2% in FY23, making us of course the fastest growing one of the major economies. तो इसकी वजह से these amazing GDP numbers, do you think इसकी वजह से क्या stock market पे impact होगा? Because the other view is कि GDP एक historical number है, right? And शायद markets ने उसको already factor in कर लिया है और rally हो चुका है। So GDP की वजह से आपको stock market पे क्या impact लगता है? So नम्रता, थोड़ा मैं अगेन घुमा फिरा के जवाब देता हूँ, so that
इससे आपको एक फॉर्मूला मिले इन सब बारे में सोचने के लिए। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर किसी ने आपको बोला होता कि 10 साल 15 साल की बात करते हैं, 2008 9 10 में जब पहला फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, अगर आपको किसी ने बोला होता कि अगले 10 से 15 साल में ये तीन जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया, इनका जो ग्रोथ रेट है, इसमें चाइना सबसे बेहतर स्पीड से ग्रो होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, इंडिया नंबर 2 होगा और यूएस विल स्टिल ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन चाइना एंड इंडिया बिकॉज ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में है कि जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट है, वहाँ पे पैसा अच्छा बनता है, वहाँ की स्टॉक मार्केट अच्छा करती है, तो ये 3 डेटा पॉइंट के बेस पे आपने शायद आपका पूरा पैसा चाइना में लगाया होता और बहुत कम पैसा अमेरिका में लगाया होता। हालांकि हुआ ये है कि हमारा 90 से 95% पैसा इंडिया में लगता है बिकॉज वी अर्न मनी इन इंडिया एंड वी आर स्टिल नॉट येट एक्सपोज टू इन्वेस्टिंग ग्लोबली। नाउ लुक एट व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 2008 टिल टुडे। द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इज यूएस, लेड बाय टेक्नोलॉजी बिकॉज पिछले 15 साल का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएशन जो हुआ है वो ग्लोबल टेक कंपनीज में हुआ है एंड दे आर नॉट कंपनीज बिलोंगिंग टू वन कंट्री, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ कंट्रीज. So the point I'm making is that GDP is just one variable in the future outcome over the next 15-20 years. And today's GDP has probably no connection to the outcome 10 years down the line, 20 years down the line. Because in the next 20 years, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन रहने वाला है, इतने सारे इवेंट्स होंगे, इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे, अच्छे न्यूज़ आएंगे, खराब न्यूज़ आएंगे. तो मेरा ये मानना है कि पहले जैसे आपने बताया कि ये पॉजिटिव जीडीपी आया है, वो तो अभी आपको पता है, मुझे पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं, इट मींस मार्केट को भी पता है, तो इट इज ऑब्वियसली प्राइस्ड इन. नंबर 1. नंबर 2, व्हाई आर वी स्टिल गोइंग अप from a stock price point of view? Because all markets in the world are going up, number 1. And number 2, India is relatively the most stable market from a democracy point of view and availability of sectors and companies point of view. And पिछले 15 से 18 महीनों में FIIs ने बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर निकाल दिया था, इधर बिकॉज दे फेल्ट कि इंडिया के मार्केट्स थोड़े महंगे थे या दे फेल्ट दैट अदर मार्केट्स आर गिविंग देम बेटर अपॉर्चुनिटीज़. सो हमारे देश में जो FIIs का इन्फ्लो था, ये रफली 20 से 24% हमारे जो पूरे मार्केट का वैल्यू है उसका 24% FIIs के हाथ में है. तो उनका फ्लो पिछले 1.5 साल से नेगेटिव था, तो वो अब फिर से पॉजिटिव होना शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से. तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म में फ्लोज बाजार को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, फंडामेंटल्स की वैल्यू लॉन्ग टर्म में दिखती है. शॉर्ट टर्म में फ्लोज होता है, मीडियम टर्म में वैल्यूएशन होता है और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स होते हैं. तो फिलहाल हमारा जो एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे हमारे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वेरिएबल इज इम्प्रूविंग. वैल्यूएशन वाला डायमेंशन जो है वो बहुत महंगा था, वो थोड़ा रीजनेबल हो गया है, अभी भी बहुत सस्ता नहीं है लेकिन रीजनेबली प्राइस्ड हो रहा है. और फ्लो वाला जो वेरिएबल है, डोमेस्टिक फ्लोज तो ऊपर आ ही रहे हैं. ऑल इंडियन इन्वेस्टर्स, मेनी इंडियन इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs एंड एसेट एलोकेशन फंड्स एंड हर महीने में 15 से 20 हज़ार करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में और अब बाहर का पैसा फिर से रिटर्न हुआ है. तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से आवर मार्केट्स हैव रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू वीक्स मूव्ड अप बाय 8 to 10%. So I understand that शायद GDP numbers या ये सब बहुत short term impact करते हैं. In the long term, it's not going to make a big difference to our portfolio in general. तो अगर हम long term की ही बात करें कल्पेन, देखा जाए तो जो large cap mutual funds हैं, 88% of them उन्होंने अपने benchmark को beat नहीं किया है in a 5-year horizon. And I think I won't say long term is 5 year, but at least we say कि अगर आप long term के लिए invest करें तो कम से कम 5 साल के लिए करिए. The longer the better, but minimum 5 years. तो अब there's this huge debate around active funds and passive funds, right? अब देखा जाए तो अगर large caps ने अपने underlying benchmark को outperform नहीं किया है, so then what exactly is the right strategy to pick up a large cap fund? Especially देखा जाए तो large cap funds का जो है portfolio index funds के साथ बहुत overlap भी होता है. So help us understand this कि long term अगर हम बात कर भी रहे हैं तो फिर how do we select the large cap funds at least? तो हमेशा हम डिबेट करते रहते हैं लेकिन वो डिबेट का जो तथ्य है वहाँ पे नहीं जाते हैं. तो सवाल ये पूछना है और तुमने अपने सवाल में ही थोड़ा बहुत जवाब दे दिया कि अगर लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो इंडेक्स के जैसे ही दिखता है या होता है, इसे हम बोलते हैं लो एक्टिव शेयर. सो अगर लार्ज कैप यूनिवर्स जो है हमारा वो टॉप 100 स्टॉक्स का है, ठीक है,
अब ये हम अगर ये ब्रॉडली मान लो हम एक लार्ज कैप फंड चलाते हैं जो मोरोलेस ये टॉप 100 स्टॉक्स या 70-80 स्टॉक्स खरीदेंगे और मोरोलेस उसी वेट्स में हम खरीदेंगे, ऑन टॉप ऑफ इट 1 से 2% का एक्सपेंस होता है, तो मैथमेटिकली बहुत मुश्किल होता है इस इंडेक्स को बीट करना, बिकॉज यू आर बाइंग द इंडेक्स एंड देन हैविंग अ कॉस्ट ऑन इट इन अ वे, सो मैथमेटिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट. नाउ इंडस्ट्री में बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं और इसमें ना ये एक डायलेमा है, एक चैलेंज है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि ये हर साल अपने बेंचमार्क को बीट करे. तो हर साल अगर मुझे अपने बेंचमार्क को बीट करना है तो मुझे हर साल मेरे पोर्टफोलियो को बेंचमार्क के जैसा रखना पड़ेगा. अब मैं इसको बेंचमार्क के जैसे रखूंगा और फिर 2% फी चार्ज करूंगा तो फिर आउट परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा. हेंस व्हाट इज द आंसर? Don't look like benchmark. Try and choose a group of companies, cherry pick a group of selective companies from the benchmark. Don't own the benchmark, own less of the benchmark. For example, own 25 companies out of these 100. It means very high active share. Now what happens is if I own these 25 companies and hence इसका second order effect ये हुआ कि I am not owning the other 75 companies. And there are years when those other 75 companies will also do well. काफ़ी साल ऐसे होते हैं कि उन 75 कंपनीज में काफ़ी कंपनी ऐसी होती है जिनके ऑपरेटिंग वेरिएबल्स अच्छे नहीं होते हैं, जिनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो होती है, जिनके ग्रोथ रेट स्लो होते हैं या उनके वैल्यूएशंस महंगे होते हैं, बट स्टिल दे डू वेरी वेल इन द मार्केट टेम्पररीली. नाउ अ फंड मैनेजर हु इज डिविएटिंग फ्रॉम द बेंचमार्क, जिसके पास वो 75 स्टॉक्स नहीं है, ही विल अंडर परफॉर्म टेम्पररीली. बट होता क्या है कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हर दिन होता है, लाइक अ T20 मैच, नॉट अ टेस्ट मैच. हर दिन इसका मेजरमेंट होता है, एनएवी हर दिन पब्लिश होती है, हर दिन आपकी वेबसाइट पे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आएंगे, हमारी वेबसाइट पे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आते हैं, तो ये फंड वहाँ पे नहीं आएंगे. तो फंड मैनेजर भी काफ़ी टाइम ये सोचेगा कि मैं शॉर्ट टर्म गेम खेलूँ या लॉन्ग टर्म गेम खेलूँ. तो इसमें द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि बेंचमार्क को बीट करने का शायद एक ही तरीका है कि थोड़ा बेंचमार्क से पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अलग होना चाहिए और सही होना चाहिए. अगर हमने बेंचमार्क से डिविएट किया लेकिन गलत स्टॉक्स में डिविएट किया, देन वी विल नॉट आउट परफॉर्म. बट इफ वी डिविएट एंड डिलीवर एंड डिविएट विद द राइट स्टॉक्स, वी विल बी एबल टू जनरेट दैट आउट परफॉर्मेंस. सो हमने एक स्टडी की थी अराउंड 1.5 साल पहले. अक्रॉस द इंडस्ट्री जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं, काफ़ी हद तक उनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो ज़्यादा है और जो एक्टिव शेयर है वो कम है, including to some extent our funds also, and that was one of the source for underperformance, and which is why we took this decision at DSP that हम portfolio को concentrated रखेंगे, 25 से 30 स्टॉक्स में ही हम पैसा एलोकेट करेंगे. और ये 25 से 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की एक फॉर्मूला हमने इंटरनली बनाई है, बिकॉज उससे एक डिसिप्लिन आता है, उससे एक स्ट्रक्चर बनता है. इट्स नॉट लेफ्ट टू द विम्स एंड फैंसीज अलोन ऑफ ऑल ऑफ अस. तो एक तो है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होंगे और पोर्टफोलियो का जो एक्टिव शेयर है वो अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा होगा, ये बेंचमार्क से डिविएट करेगा. और इसके वजह से, और अगर हमारा डिविएशन सही लॉजिक पे है, सही फॉर्मूला पे है, तो रोलिंग 3 से 5 साल के साइकिल पे बेंचमार्क को बीट करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये इम्प्रूव हो सकती है, वो बढ़ सकती है. अभी एक्सीडेंटली पिछले 1 साल में इस पोर्टफोलियो ने 2% से बेंचमार्क को बीट किया है. ये हमारे डिज़ाइन चेंज की वजह से हुआ है या रैंडमनेस से हुआ, ये तो टाइम ही बताएगा. वी होप कि ये डिज़ाइन चेंज की वजह से है. लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे एक्टिव शेयर बढ़ेगा और अगर फंड मैनेजर सही तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहा है तो अल्फा बनने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएगी. तो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि इन्वेस्टर क्या करे. अब ये ध्यान में रखिए कि अगर आज अगर आपने इंडेक्स फंड भी खरीदा तो हर इंडेक्स फंड में 2 एक्सपेंसेस होते हैं. एक है वो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर. तो जब ये आप दोनों को जोड़ लीजिए, सो देयर इज नो इंडेक्स फंड विच विल बीट द इंडेक्स. द इंडेक्स फंड विल ऑलवेज हैव सम ट्रैकिंग एरर एंड हेंस सम अंडर परफॉर्मेंस टू द इंडेक्स. सो माय पर्सनल अप्रोच ऑफ हाउ वुड आई इन्वेस्ट इज एज लॉन्ग एज आई नो कि मेरा जो लार्ज कैप फंड का फंड मैनेजर है उसका फॉर्मूला क्या है पोर्टफोलियो चलाने का, वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करता है, वो क्या बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करता है, उसकी स्टाइल क्या है और उसका डिसिप्लिन क्या है उस स्टाइल को पकड़ के रखने का. क्योंकि काफ़ी हद तक ये होता है कि जब हमारी स्टाइल नहीं चलती है बाजार में, एक टेम्पटेशन होता है कि स्टाइल से थोड़ा हम फ्लर्ट करें या ड्रिफ्ट करें, और जब वो ड्रिफ्ट में हमारा परफॉर्मेंस चला जाता है.
So my approach is learn the philosophy of the managers. So personally, I don't start my investing by looking at returns. In fact, I look for funds which have temporarily underperformed, because performance में भी cycle होती है, performance में भी mean reversion होता है. From high performance you go to low, from low you go to high, and vice versa. So I start by first choosing a fund with good sound philosophy, a manager with consistent discipline, जो अपनी इस philosophy को हमेशा follow करेगा. और तीसरा, अगर ये फंड टेम्पररली अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 या 3 साल में, और अच्छा है क्योंकि चांस ऑफ मीन रिवर्जन इज हायर. सो दैट इज माय फर्स्ट अप्रोच ऑफ चूजिंग अ लार्ज कैप फंड. द सेकंड अप्रोच आई हैव इज, मेरा ये मानना है कि जो अल्फा होता है एक्टिव फंड का वर्सेस इट्स बेंचमार्क, ये भी साइकिल्स में मूव करता है. सो देयर आर फेजेस व्हेन 3-4 years अल्फा इज पॉजिटिव, एंड देयर आर फेजेस व्हेन अल्फा इज नेगेटिव. Like last 5 years, alpha has been generally difficult to achieve, but this will also mean revert. So if you remember या notice, पिछले 1 साल में ये debates बहुत बड़ी है, right? कि alpha है या नहीं है, 80% funds are not delivering and stuff like that. But जब से debates mainstream में आई है, तब से पिछले 1 साल में actually more funds have generated alpha in the last 1 year. So even alpha has volatility. So my approach would be that when alpha कम हो, तब आप एक्टिव फंड्स में थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा ट्रीट कीजिए, और जब एक्टिव फंड्स का अल्फा बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आप आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा पैसिव फंड्स का एक्सपोजर ज़्यादा ट्रीट कर दीजिए. सो हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. देयर इज़ नो रूल इन द वर्ल्ड जिसने कहा है कि आपको सिर्फ एक्टिव में इन्वेस्ट करना है या सिर्फ पैसिव में करना है. आपकी समझ के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको एक्टिव अच्छा लगता है या पैसिव अच्छा लगता है. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे इसको चूज करना है, देन ऑल्सो रिकग्नाइज दैट यू आर नॉट नेसेसरली फिट टू बी अ डायरेक्ट इन्वेस्टर, बिकॉज इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, देन व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर हार्ड अर्न्ड मनी. देन बेटर यू चूज सम गुड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और coaches who can guide you कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए. Let me also be honest, I am glad that you are asking these questions to me, but I am not a coach, I am not an advisor, because मान लो इस सेशन को होपफुली 2-3 लाख लोग सुनेंगे, बट 2-3 लाख लोगों की जो पर्सनल टेम्परामेंट है, उनके टाइम होराइजन्स है, उनकी इन्वेस्टिंग के बिलीव्स है, मे बी वेरी डिफरेंट एंड डाइवर्स. सो माय वन आंसर इज नॉट द राइट आंसर फॉर ऑल ऑफ देम. Of course, yeah, surely. But I guess the learnings always help, right? So, Absolutely. so just adding on to what you said about large cap funds, we also have data which says कि 64% equity funds ने भी benchmark को beat नहीं किया in the 5-year time horizon, right? तो क्या फिर हम मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने लार्ज कैप के बारे में बात करी, राइट? बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप का देखा जाए तो यूनिवर्स इज बिगर कंपेयर टू द लार्ज कैप यूनिवर्स. सो देन डू यू थिंक इट विल मेक सेंस कि अगर मैं एक मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं? तो मेरा ये Instead of मानना है investing in कि थोड़ा नम्रता, मेरा ये मानना है कि जब आप पैसा जो बनता है ना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मार्केट कैप से नहीं बनता है. ये बनता है अच्छी कंपनी को अच्छे भाव पे खरीद के अच्छे समय तक उसमें इन्वेस्ट करने से बनता है. Yes. तो आपको अगर एक अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिल गई और आप इसमें 10-15 साल आप डटे रहे और इस कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहा, it continues to deliver profits year on year over next 10, 15, 20 years. That's how money is made in those stocks. फिर ये नहीं मैटर करता है कि ये लार्ज कैप कंपनी थी या मिड कैप कंपनी थी. बहुत सारी पिछले 3-4 साल में जब हमारे देश में लैंडिंग का क्राइसिस हुआ था, बहुत सारी कंपनीज जो डिफॉल्ट हुई थी, दे वर ऑल बिग कंपनीज जिनकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छे थे. द AAA कंपनीज विद 1 lakh crore बैलेंस शीट वर द वन विच वेंट डाउन. It is not that the small companies collapsed first. तो ये गलत mindset है कि बड़ा है तो सेफ है और छोटा है तो रिस्की है, and vice versa. On the other hand, let me give you another example. Let's take the example of small cap index. और मैं हमेशा ये आपको गाइड करूंगा आपके व्यूअर्स को भी कि डेटा को देखने के बाद आप पूरे साइकिल को समझिए, rather than getting carried away in superficial narratives. So let's look at the small cap index. If you had invested in the small cap index in 2008, 2007 and 8, जब पहली तेजी हुई थी इंडिया में स्मॉल कैप्स पे 2003 से 7 के फेज में टुवर्ड्स द एंड, तब से आज तक स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न शायद 7% होगा, which has barely touched the returns of a debt portfolio. आपको बॉन्ड फंड का रिटर्न मिला होगा with the fluctuations of small caps.
with huge gyrations, with very large volatility. Having said that, good active small cap managers, instead of 7%, would have earned between 12 to 14% CAGR over these 15 years. सो इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है, इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स में 300-400 स्टॉक्स होते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ स्टॉक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स विच फुलफिल द क्राइटेरिया जो उन्हें अच्छे स्टॉक का डेफिनेशन दे सकती है. जैसे कंपनीज की ROE जो है ये 15% के ऊपर है या नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% से ज़्यादा है या नहीं है. बिकॉज हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल कंपनीज इज बिटवीन 10-11%. Now, if the return on equity of companies don't cross this 10 or 11%, they cannot be great companies for you and me to put our hard-earned money. Now, small or mid caps में 70 to 80% companies many times actually remain small and mid cap. They don't actually become large. They remain small or they remain mid. So there are only 20% companies जो हमारे मेहनत के पैसे को हमें लगानी चाहिए. तो ये नैरो डाउन करने के लिए एक्टिव फंड मैनेजर्स की ज़रूरत है हु कैन सिलेक्ट द राइट कंपनीज एंड जो खराब कंपनी को एलिमिनेट कर सके. जबकि लार्ज कैप इंडेक्स में जो कंपनीज आ चुकी है, दे हैव सीजनड ओवर साइकिल्स ओवर डेकेड्स एंड बिकम लार्ज कैप. दे वर स्मॉल और मिड साइज्ड 15-20 years बैक, बट उन्होंने अपना एग्जीक्यूशन अच्छा किया या दे वर इन अ गुड इंडस्ट्री विद टेलविंड्स, hence they have become large. So I would not say that because in the last 5 years only 64% funds have beaten or not beaten, you should go and buy an index. मेरा ये मानना है कि आज भी अगर मुझे इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो पहले मैं निफ्टी से शुरू करूंगा या निफ्टी इक्वल वेट से शुरू करूंगा. ये जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इसका इंडेक्स है. इसका इम्पैक्ट कॉस्ट रिलेटिवली कम होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी बेहतर होती है. और उसके बाद मिड और स्मॉल कैप में अगर जाना है मुझे, आई विल प्रिफर एन एक्टिव फंड मैनेजर जो रिस्क को समझेगा और खराब कंपनीज को बाय डिफॉल्ट पोर्टफोलियो से एलिमिनेट कर देगा. जबकि अगर हम पूरा का पूरा इंडेक्स स्मॉल या मिड कैप खरीदेंगे, लॉट ऑफ वीक कंपनीज, पुअर कंपनीज विद बैड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज विद पुअर गवर्नेंस, दे विल ऑटोमेटिकली कम इन द पोर्टफोलियो. So just adding to this conversation about small cap funds, क्योंकि small cap funds बहुत ही favorite funds होते हैं for a lot of investors. People love investing in small cap funds because the return potential also is believed to be higher. So do you think, जो आप बोल रहे थे कि small cap active funds would be better than a small cap index, do you think it could also be क्योंकि बहुत सारे जो small cap funds होते हैं शायद वो large cap की तरफ ज़्यादा allocation करते हैं. अगर मीडियन है करीब 5%, देयर आर मेनी स्मॉल कैप फंड्स जो करीब 12-13% भी लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड यू थिंक दैट इज द रीजन फॉर जनरेटिंग अल्फा? नो नम्रता, दैट इज नॉट अ बिग नंबर कि किसी के पास 5% लार्ज कैप है और किसी के पास अगर 15% लार्ज कैप है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके वजह से स्मॉल कैप फंड्स आर डूइंग बेटर. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्चुअली अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 2013 में was the end of a मंदी का cycle in India. 2013 के बाद our markets have actually risen very sharply with few intermittent phases of correction. But the bottom of our market in the last decade was 2013. So it was a great starting point. And in fact, small caps were far more cheaper. तो 2013 से 23 में small cap index and small cap funds have actually outperformed large caps. तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में ज़्यादा लार्ज कैप है, that small cap fund actually should have underperformed. तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैप वुड बी मोर फ्रॉम अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एज पर रूल ऑल्सो a small cap fund can have minimum 65% is supposed to be in small cap and the balance 35 should be in mid cap or small cap or mid cap and large cap combination. Now हर फंड मैनेजर अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेता है एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. देयर आर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड हर मार्केट साइकिल के हिसाब से कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड होता है. एज लॉन्ग एज पोर्टफोलियो में 70 से 80% स्मॉल और मिड कैप का वेट है, दैट्स गुड इनफ. बट प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैप इज नीदर एडिंग टू रिटर्न्स और डाइल्यूटिंग रिटर्न्स इन माई व्यू. इट इज द राइट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स at the right price, which is the final determinant of the final outcome. Having said that, फिलहाल आज मैं ये भी बताऊंगा लोगों को समझने के लिए कि हम एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे इनफ्लो इन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. वेदर डायरेक्ट इनफ्लो आप देख लीजिए या इनफ्लो इन म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, एंड मोर सो विद इन दैट स्मॉल कैप स्टॉक्स में. कोविड के बाद
बहुत सारे यंगस्टर्स ने जिनको स्टॉक मार्केट क्या है पता नहीं था, बट उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे बहुत कुछ सीख लिया या ना सीखे बिना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड वो एक ऐसा साल था जहाँ पे बाजार 100% से एक साल में ऊपर चला गया। तो एक इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है हम सबको कि मुझे मुझे स्टॉक मार्केट क्रैक कर लिया मैंने, पहले साल में मैंने 50 से 100% या 150% बना लिया। जबकि लॉन्ग टर्म में तो 12 से 15% ही बनता है स्टॉक मार्केट में। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का पैसा स्मॉल और मिड कैप में लगा है। अब ये जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज होती है इनका फ्री फ्लोट कम होता है। अब फ्री फ्लोट कम होता है इट मीन जब बहुत पैसा लिमिटेड स्टॉक को चेस करता है तो वो स्टॉक अपने फेयर प्राइस से ज़्यादा महंगा हो जाता है। नाउ व्हाट इट मीन्स इज the past 1 year, 3 year returns will look very good because the prices have run up. But you are actually buying them at an expensive price, which can have impact on your future returns. So today's return of small cap stocks or small cap index can have some amount of aberration because of this dimension की number of stocks जो available है वो तो limited ही है, लेकिन पैसा जो उनको चेस कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके वजह से आप देखोगे तो जो वैल्यूएशंस है मिड कैप यूनिवर्स का पर्टिकुलरली, काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स अपने पिछले 10-15 साल के वैल्यूएशन से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा महंगे हैं। तो इसीलिए हर इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि क्या आप सही भाव पे खरीद रहे हो। कंपनी अच्छी होगी लेकिन आप उसको अगर उसका डिजर्विंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो मान लो 30 का है, बट आप उसको अगर 50 या 60 के पी पे खरीदोगे तो आपके फ्यूचर रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। Sure. Okay. Yeah. So, one of the ways to actually manage this is maybe through SIPs, Very right? true. कि of course Very market true. up and down होता रहता है, तो आप SIP के जरिए बिल्कुल। इन्वेस्ट करिए, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिल जाता है, राइट? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं who are very keen to invest in mutual funds as well, लेकिन I think जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, and this is something that we've realized over the number of years that we've been interacting with young investors, कि हम शुरुआत कहाँ से करें, right? The first few funds that should be a part of my portfolio, ये हमेशा चैलेंजिंग रहता है। I think आज के टाइम में SIP as a concept बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन कौन से फंड में SIP करनी है is a challenge for a lot of them, right? तो आपके ओपिनियन में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? वी स्पोक सो मच अबाउट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. So, I mean, I'm just trying to ask, because these are also good category of funds to invest in, right? तो आपको क्या लगता है कि as a first time investor, multi cap, flexi cap कैसे अमृता, आप होगी? आपके हर सवाल में जवाब खुद दे देती हो, so there's not much for me to add. The answer is exactly what you said. देखिए, आप वो करिए जो आपको समझ आता है, जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी हो। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है स्मॉल कैप के साइकिल को समझने की या मिड कैप्स और लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स के बिजनेस मॉडल्स को समझने की, तो आप अपने पैसे के साथ नुकसान करोगे इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। सो द फर्स्ट स्टेप, जो पहली शुरुआत है फॉर पीपल हु स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, इज एन SIP, बिकॉज राइटली एज यू सेड SIP सॉल्व फॉर फ्लक्चुएशंस। बाजार की तेजी और मंदी इसमें इवन आउट हो जाती है, तो SIP सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ये बोलता है कि इंडिया में अगर 500 स्टॉक्स का मेरे पास यूनिवर्स है, तो ये 500 में से 50 कौन से स्टॉक्स है जो अच्छे हैं on different variables, on their profit growth, on their balance sheet quality, on the quality of the management, on the future prospects, on the valuations they are available, combination of sectors, combination of different market caps. Normally flexi cap fund में mostly देखा गया है कि 50 से 70% का पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होता है और बाकी का 30% पोर्टफोलियो, 30 से 40% पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप में भी होता है। इट इज़ नॉट बाई डिज़ाइन कि हमें इतना स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में रखना है। इट इज़ जनरली बॉटम अप की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है। अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख में अगले 3 साल के लिए लार्ज कैप में है, तो पोर्टफोलियो का टिल्ट थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर एक कोविड के बाद स्मॉल कैप्स में ज़्यादा धुलाई हुई थी, तो स्मॉल कैप कंपनीज की प्राइजेस ज़्यादा गिरी थी, तो वो अच्छा फेज था, थोड़ा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाए। तो ये एक ही फंड के अंदर फंड मैनेजर जब अपने पोर्टफोलियो को मिक्स एंड मैच कर लेता है, इट्स लाइक गिविंग यू थाली रादर देन गिविंग यू ओनली वन क्विजीन विच इज़ फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर दैट ईयर। इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड थाली। तो मेरा ये मानना है कि पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP इन फ्लेक्सी कैप से ही शुरू होना चाहिए। Let me give you just one more So, data point, Namrata, that take the phase of 2008 to 2013. ये 5 साल ऐसे थे जब
मार्केट का जो लेवल था, सेंसेक्स वाज 21,000 इन 2008 एंड लॉट ऑफ मनी केम इन दैट टाइम. इट देन फेल बाय 50% जब वो यूएस में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. तो एक साल में 50% गिर गया. तो 21,000 का जो मार्केट था वो रफली 8,000 हो गया. फिर से इमीडिएटली एक साल में डबल हो गया, क्योंकि हर जगह पे प्रिंटिंग ऑफ मनी बाय सेंट्रल बैंक शुरू हुआ 2009-10 से. तो 8 से मार्केट फिर से 16-17 पे आ गया एंड देन अगेन वेंट अप टिल 21. So in 2 years, it came back to the same price. 21 went down to 8, 8 came back to 21. And for the next 3 years, it remained at 21. ऊपर नीचे होके. So over 5 years, 21 remained at 21. So if you had done a lump sum at 21, after 5 years, what would be the value of your money? More or less the same. Your NAV, most of our NAVs were more or less the same. Having said that, अगर किसी ने SIP किया होता, तो वो जो करेक्शन में यूनिट्स सस्ते मिल गए और फिर सस्ते यूनिट्स की एनएवी बढ़ गई अगले 2-3 साल में, तो एसआईपी इन्वेस्टर का रिटर्न 7% था, 7% पर एनम. नाउ ऑफ कोर्स 7 itself is not great, but the point I'm making is that if the path of market is going to be more fluctuations over the next 5 years, SIPs are still a better way to invest than putting all the money at one time. So that's another advantage of doing an SIP. An extension to this same question that I asked you, and ये आपने भी बोला था कि हर इन्वेस्टर कोई एक स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं हो सकता है, राइट? हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं. सो मान लीजिए ऐसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जो बोल रहा है कि इक्विटी में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा रिस्क ज़्यादा है, शायद मैं बेटर रिटर्न्स बना लूँ, आई बीट इन्फ्लेशन बट द रिस्क इज हाई, और शायद इन्वेस्ट इन से डेट पोर्टफोलियो जहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन आई नॉट बीट इन्फ्लेशन. और कैन आई डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज? तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है एंड दे जस्ट एंटरिंग द म्यूचुअल फंड स्पेस एंड दे डोंट वांट टू टेक टू मच रिस्क, तो क्या हाइब्रिड फंड एज अ कैटेगरी वर्क्स वेल फॉर देम? सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट how hybrid funds can be a part of a first time investors portfolio. So बिल्कुल नम्रता की पहले तो जो नए इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्ट करने आते हैं, बहुत रेयरली देखा है मैंने कि उन्हें अपना रिस्क प्रोफाइल या रिस्क एपेटाइट पता होता है, क्योंकि हमने अभी मंदी देखी नहीं है. हमने अभी NAVs को 15-20-30% गिरते देखा नहीं है. नॉर्मली इन्वेस्टर पहली बार अट्रैक्ट किसी भी एसेट क्लास की तरफ कब होता है? जब उसका पिछला 1-2 साल का रिटर्न बहुत अच्छा होता है. So it is very nice and wise to know that there are investors who are also recognizing कि भले पिछले 2-3 साल में इक्विटी का बहुत अच्छा रिटर्न रहा है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी ने 12 से 15% रिटर्न दिया है, बट मेरा ये फ्लक्चुएशन को झेलने का जो प्रोफाइल एपिटाइट है वो कम है. सो नोइंग योर सेल्फ इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस इन इन्वेस्टिंग. बिकॉज अगर आप ने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया एंड इफ यू एंड अप लूजिंग मनी, then you will do a lot of injustice to your hard-earned money. So I always compare equity and fixed income like an accelerator and a brake in a car. So when you buy a new car and someone says that आपको अगर best speed चाहिए तो इस कार का accelerator सबसे अच्छा है और इस कार में हमने ब्रेक ही नहीं डाला है, so that you will never slow down. We will not go and buy a car like that, क्योंकि हमें पता है कि especially if you're living in a city like Mumbai, so roads are less, potholes are more, speed breakers are more, so you need a brake also. On the other hand, someone says that हमारी कार सबसे सेफ है, इसमें ब्रेक ही ब्रेक है, acceleration बहुत कम है, that also will not take you towards your destination. So hybrid funds are nothing but a good example of having brake and accelerator, and then you have to over time learn how to use them. जैसे जैसे आपके रोड की क्वालिटी अगर क्लीन रोड है, ट्रैफिक कम है, तो आप एक्सेलरेशन पे लेके जाओ, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप फर्स्ट गियर में चलाओ. तो हर गाड़ी में ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है: ब्रेक, एक्सेलरेटर, सीट बेल्ट एंड गियर्स टू कैलिब्रेट योर स्पीड, विच मीन्स दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड योर एसेट एलोकेशन टूवर्ड्स स्पीड. आपको 40% इक्विटी में रखना है, 50 रखना है, 80 रखना है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गियर दैट विल डिसाइड योर स्पीड लेवल. सीट बेल्ट is for permanent safety, assuming that something goes wrong, which may the probability of which may be 0.01%, but if it goes wrong, you remain safe. Brakes are because constantly you have to slow down because of traffic and signals, and accelerator so that you can continue reaching your destination. So a hybrid fund is actually a combination of all these variables, and जिन investors को volatility से डर लगता है और
जिन इन्वेस्टर्स को जब जब मार्केट गिरती है तब उनको पैसा निकाल के बाहर निकल जाने का मन करता है, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स आर बेटर देन प्योर इक्विटी फंड्स. There are enough investors लेकिन who like who after a few cycles have matured to say कि एक स्टेटमेंट है मार्केट्स में कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स गो अपवर्ड्स, इन द शॉर्ट टर्म दे कैन कीप गोइंग डाउन ऑल्सो, सो एवरी टाइम दे गो डाउन लेट मी पुट मोर मनी. दैट जनरली इज द विजडम. मुझे 12 साल बाद आया था ये एक लाइन सीखने में, मुझे 12 साल लगे थे. होपफुली आज का जनरेशन बिकॉज उनके पास एक्सेस टू इनसाइट्स बेहतर है, तब उन दिनों में ग्रो नहीं था, इस तरह के कॉन्वर्सेशन नहीं थे. So if you become a mature investor faster, then you know the need for a hybrid fund may not arise for you. But for those who can't digest fluctuations, the best product design is hybrid funds. लेकिन कल्पेन हाइब्रिड फंड्स में भी इक्विटी बेस्ड है, डेट बेस्ड है, बैफ होता है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, तो फिर उनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, राइट? ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया हाइब्रिड फंड में डालना है, लेकिन विद इन हाइब्रिड आल्सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स. So that's a problem. जब चॉइस बढ़ जाती है तो कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है. एंड आई ऑलवेज से दैट मोबाइल खरीदना है तो आप थोड़ी मेहनत करते हो सब डायमेंशंस पे, आपको जो डायमेंशन सही लगती है उसमें कौन सा मोबाइल बेस्ट है, तो थोड़ा ये स्टडी करना भी ज़रूरी है. ईदर यू फाइंड समवन हु कैन गाइड यू वेल और यू पुट दैट एफर्ट टू स्टडी. एंड अगेन माई वन आंसर इज नॉट रेलेवेंट टू ऑल, बट इफ आई वर टू इफ यू पुट अ गन ऑन माई हेड कि एक ही आंसर देना है, तो मोस्टली मेरा ये मानना है कि a simple concept like what we call as equity and bond fund, where roughly 70% is statically invested in equities. At all points in time, 70% will be in equity, and the balance 30 will be in fixed income. This is a static hybrid fund. And why is the tilt right from day one slightly more towards equity? Because equity is a growth asset. Equity आपका इन्फ्लेशन बीट करने का ऑल्टरनेटिव है. फिक्स्ड इनकम विल नॉट बीट इन्फ्लेशन. India is a country generally where inflation has been on the higher side, so we all want to retain purchasing power or grow our purchasing power. So slightly higher tilt towards equity, and 30% is towards safety, which is through fixed income. And the beauty of this is कि मान लो 70-30 पे आपने पोर्टफोलियो शुरू किया और अगले 2 साल में ये होता है कि equity markets crash, कोविड टाइप इवेंट होती है, that 70 will become, let's say, 55 just because of price correction, and that 60 will actually end up becoming 45. So the mix will tilt to 55-45. Automatically, the fund manager will rebalance back to 70-30. Now, in that process, ये जो journey है 55 equity को 70 पे लाने की, what will he do? He will buy more stocks. And when will he buy? When the stocks are cheaper. क्योंकि stocks गिरे हैं, इसीलिए 70-55 हुआ है. तो जो फंडामेंटल रूल है अच्छे सेंसिबल इन्वेस्टिंग का, कि अच्छे स्टॉक्स जब सस्ते हो तब ज़्यादा खरीदो, और जब महंगे हो तब कम खरीदो या बेच दो. तो ये जो 70-30 का डिज़ाइन है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. बाय द वे आज के वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है नहीं, क्योंकि आज के वर्ल्ड में बैलेंस एडवांटेज फंड्स और ये कैटेगरी ज़्यादा पॉपुलर है. बट अगर आपको कम डिसीजन लेने हैं और फंड मैनेजर्स को भी कम डिसीजन लेने हैं, तो ये 70-30 का जो व्हीकल है इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्हीकल. आपका एडवांटेज टैक्स का जो है वो इक्विटी का टिल्ट है, इसमें टैक्स एफिशिएंसी इक्विटी की है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इक्विटी हैज जनरली डिलीवर्ड बेटर रिटर्न. सो दैट इज हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट. आई वुड गो वन स्टेप फर्दर. आई वुड प्रेफर अ फंड पर्सनली, लाइक where do I put my money, or any friend who says I want to start investing the first time, give me one fund. I choose a fund where around 70 rupees is in stocks, but these are stocks of India as well as stocks of companies outside India also. Basically, you're getting in one bouquet good companies of India and the world. You're not limiting only to India. इससे एक थोड़ा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, इससे फ्लक्चुएशंस थोड़े कम हो जाते हैं और आपको अच्छी कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है. देयर आर फेजेस जब इंडिया के अच्छे स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, दे बिकम मोर एक्सपेंसिव. So at such points, global stocks help in building a better portfolio, and 30 rupees remains in fixed income or other. So those type of products will be more valuable. Sure. Okay. So now I'm going to ask you a very, very important question, क्योंकि ये जो है एक बहुत important financial goal से link है, and that important financial goal is retirement. तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट पीपल अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट के लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक और एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए. अब ये इतना सीरियस गोल है, राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए क्या एक इन्वेस्टर का कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होना चाहिए,
considering it's a very very important goal, या फिर aggressive portfolio होना चाहिए assuming I have a lot of time in hand so I can look at a more aggressive portfolio. तो retirement as a goal के लिए आप क्या बोलना तो चाहेंगे? ये अभी 2 दिन पहले आई वाज हैविंग अ डायलॉग विथ माय सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स अलोंग विथ हिज प्रोफेसर एंड आई हर्ड अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव कमेंट कि आज का जनरेशन ये सोचता है कि हम 40-45 पे ही रिटायर हो जाएंगे. So I was wondering that our lifespans are increasing. Let's say if we end up living for 85-90 and if we stop earning at 45-50, we will need so much more money in our zero salary life to take care of future expenses, and hence the need for thinking retirement today becomes very important. In fact, रिटायरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोग रिटायर होने के बाद सोचते हैं बट पहले Yeah. नहीं सोचते एंड बाय द टाइम इट्स टू लेट, क्योंकि उस दिन आपके पोर्टफोलियो में आप कुछ भी करो आपके पास टाइम बहुत कम है और रिस्क एपिटाइट आपका जनरली कम हो जाता है जब आपकी सैलरी या इंक्रीमेंटल इनकम जीरो हो जाती है. इनफैक्ट रिटायरमेंट के फेज में ये भी होता है कि अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है सस्ता खरीदने का, मान लो मार्केट गिर गया एंड स्टॉक्स बिकम चीप बट यू डोंट हैव न्यू इनकम, एटलीस्ट ड्यूरिंग योर सैलरीड डेज एवरी मंथ आपके पास नई इनकम आते रहती है टू टेक एडवांटेज ऑफ लेसर प्राइसेस. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए? शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. अगेन, हाउ फार आर यू फ्रॉम दैट फेज ऑफ रिटायरमेंट, नंबर वन. नंबर टू, आप अगर रिटायर हो भी जाते हो तो आपका फाइनेंशियल वेलबींग क्या है एट दैट पॉइंट इन टाइम. डू यू हैव इनफ मनी which and आपका expense और lifestyle क्या है? So for example, there are people who don't have enough money even during that phase of retirement. So they have to be more safer in their portfolio because if markets drop by 15-20% और उनके expenses 20% से गिरने वाले नहीं है. So if their savings are less overall, then their portfolio should take a conservative tilt. There are some people who have saved very well right from an age of 10, 15, 20 because of their parents and then their own financial discipline. So by the time they retire, for example, they have a meaningful corpus, but their lifestyle is frugal. So अगर बाजार का उतार चढ़ाव वो easily झेल सकते हैं, bear कर सकते हैं, then they can be more aggressive towards their portfolio. तो एक तो आपका खुद का financial environment या जो P&L है, आपके cost क्या है, expenses क्या है और income corpus क्या है, that should determine your aggressive stance or conservative stance. सेकेंड, एट दैट पॉइंट इन टाइम मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है वो भी मैटर करता है. अगर मार्केट बबल जोन में है देन यू शुड बी बिकम कंजर्वेटिव. अगर मार्केट फियरफुल जोन में है, बहुत सस्ता है, वंस इन 10 years जैसे होता है, कोविड का टाइम था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था, मार्केट सस्ता होता है तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा अग्रेशन डाल दो बिकॉज यू आर गेटिंग स्टॉक्स चीपर. सो इट इज नॉट जस्ट योर टाइम होराइजन अलोन. लाइक माई parents have retired, they live with me, they don't have expenses, they have saved reasonably good money. Most likely their portfolio will go for the next generation. So their length of money is for long periods of time. It's not only for a short period of time. I live with them, so my income can also take care of their day-to-day expenses. They don't have to spend for household expenses and stuff like that. So unke portfolio mein I can run a slightly aggressive tilt and so on and so forth. Okay, fair enough. So, another category of funds that we're going to talk about, क्योंकि हमने इतने सारे category of funds के बारे में discuss किया है, we have value funds and contra funds. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक ही हैं, right? So, आपके opinion में ये जो funds हैं, do they follow a similar investment strategy? If not, can you help us understand कि इन दो funds में differences क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो स्टाइल्स में भी अलग अलग अप्रोचेस होते हैं और एज अ कॉमन मैन इनको समझना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. देयर मे बी 5 फंड्स रनिंग कॉन्ट्रा फंड इन 5 different ways. There could be 10 funds running value fund also in 10 different ways. So I don't know how to explain to you all these dimensions, but I'll tell you how I think about it. Basis my learnings, my reflections, my reading of what matters. मेरे हिसाब से 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 80 रुपये में मिलती है और आप अगर 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में ख़रीदते हो तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलूँगा मैं. Because you're buying something which is worth 100 today with some margin of safety. कि आपको 80 में मिल रहा है तो वो 20 रुपये का आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. तो वो उस बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है वैल्यू इन्वेस्टिंग समझाने का.
वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो एग्जीक्यूशन है उसमें कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग मैटर करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड में. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मुझे अगर वुलन वेयर खरीदना, आई वांट टू बाय अ जैकेट फॉर द कोल्ड वेदर. मुंबई में तो वेदर कभी कोल्ड होती नहीं है, बट मान लो once or twice in a year if I want to go to cooler places for a vacation and I need a jacket, इसको मैं गर्मी सर्दी की सीज़न में खरीदूंगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा और गर्मी की सीज़न में खरीदूंगा तो थोड़ा सस्ता मिलेगा. तो ये हो गया कॉन्ट्रेरियन का एग्जांपल कि जब गर्मी है तब मैं इसको आज खरीद के मेरे घर में रख लूंगा. I will open it to wear only 3-4 months later when winter comes or when I in winter go out to travel. So that is the dimension of contrarian investing. To give another example from markets, in the last 5-10 years, आप अगर दुनिया भर के मार्केट्स देखें या इंडिया के मार्केट्स देखें तो जो सेक्टर्स और स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया है वो है बैंकिंग स्टॉक्स है, आज की तारीख में इंजीनियरिंग स्टॉक्स है, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स है, दे आर डूइंग वेरी वेल. But what is not doing very well for the last 5-7 years are pharma stocks, or in the last 1.5 year are technology stocks. Now, pharma is also not doing well. Technology also is not doing well. Are both contrarian? I mean, you can't generalize because technology stocks are down only in the last 1 year, whereas pharma stocks have been trending down for the last 7 years. So, अगले 3 साल में क्या इनके प्रोस्पेक्ट्स है दोनों सेक्टर के और वो क्या भाव पे मिल रहे हैं विल डिटरमाइन विच हैज मोर वैल्यू. So contra is being opposite, but if you are opposite just for the sake of it, but without having value investing as your anchor, that type of contra investing, in my view, should not work or will not work. So value as an anchor कि 100 रुपए की पेन मैं अगर 120 में खरीदता हूँ तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई और मेरे से बेहतर गधा होगा जो 140 में खरीद लेगा, तो मेरा 120 में 20 रुपए में बेच के प्रॉफिट बना लूंगा. So that is living on hope, and many times markets make money on hope also. जब बबल होता है तो होप पे भी पैसा बनता है, तो इट्स बट यू नीड उसमें इवेंचुअली एक्सीडेंट भी होता है बिकॉज इन द फाइनल रन इसकी वैल्यू अगर 100 रुपया है तो वो 140 पे नहीं इवेंचुअली 100 पे ही आ जाएगा. लेकिन ये 100 रुपए की पेन जब जब मंदी में 80 में मिलती है मुझे, इफ आई बाय मोर दैट टाइम and eventually that 100 goes to 140 because of that bubble, but I have bought at 80, my odds of making more money are higher. So I personally believe value investing is a sensible way of investing, and if you want to learn about it, then there's a lot of literature on value investing. You can just go and Google. There are enough global and domestic managers who are investing with value as a style, and I think that's a very sensible way of investing. It is a very difficult way of investing क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मेनी टाइम्स यू हैव टू बी अर्ली. फॉर एग्जाम्पल आज हमारे खुद का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा जो टॉप 100 फंड है या हमारा वैल्यू फंड है, बेंचमार्क में फार्मा कंपनीज का वेट 3% या 4% है, एंड फार्मा स्टॉक्स आर नॉट डूइंग वेल, एंड विच इज वाई दे आर अवेलेबल चीपर. तो हमारे इन दोनों फंड्स में रफली 14% वेट फार्मा कंपनी का है. सो वी आर ओनिंग अ लॉट मोर ऑफ वॉट इज राइट नाउ नॉट डूइंग वेल, एंड बिकॉज इट्स नॉट डूइंग वेल वी आर फीलिंग द पेन ऑल्सो. So maybe we are a bit early. Maybe 3 months later or 6 months later they may start doing well. I hope we are not wrong. Many times you may be early and you may end up being wrong. I hope we are not wrong. That only time will tell. But the risk of investing in styles like this is, and in these funds we are not in the hot sector of today, which is engineering stocks, which is infra stocks. There is this narrative that Make in India will do very well. So a lot of engineering stocks are at 70-80 times price to earning, whereas pharma stocks are at 15, 20, 25 times price to earning, but they are not popular. So some of our funds which have a larger tilt to value investing are over invested in pharma. They are going through that pain right now, but at some point when the cycle turns, they may be better beneficiaries than the rest of the benchmark. Okay, perfect. So now I'm going to ask you another very interesting question, and these are more conceptual questions now, not related to any specific category of funds. तो एक जो क्वेश्चन है जो बहुत इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं जिसके बारे में, कि क्या हमें घर खरीदना चाहिए, राइट? बाइंग अ हाउस अ वेरी इमोशनल डिसीजन, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट. लेकिन बहुत से लोग जो है वेरी अर्ली ऑन इन देयर करियर्स बाय अ हाउस, व्हिच मींस उनका ईएमआई चलता है एंड देन उन्होंने एक पर्सनल एसेट बना लिया है, versus those people जो शायद थोड़ा वेट करते हैं and maybe build financial assets first, right? So what is the right strategy? So if I'm a young investor or a young individual, क्या मुझे पहले घर खरीदना चाहिए and compromise on my financial assets,
या फिर मुझे घर बाद में खरीदना चाहिए आफ्टर बिल्डिंग द फाइनेंशियल एसेट्स, So या घर खरीदना ही नहीं चाहिए? if you have an understanding wife like I had, who waited after getting married for 20 years to buy a home and never put that emotional pressure कि मेरा खुद का घर क्यों हमारा खुद का घर क्यों नहीं है. I took the decision कि पहले मैंने financial assets build किए, और फिर मैंने at the age of 48 I bought a house. But yeah, again, personal context. There is no generalization in this, Namrata. The way I would like to, answer this is, वो खरीदो जो सेंसिबल है, वो मत खरीदो जो इरेशनल है. अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बड़े बड़े जो शहर है, एंड स्पेशली मुंबई, it is a city more expensive than some of the global cities of the world. Right? For the infrastructure and the education ecosystem that today you have, and the nature of roads, every 6 months we worry about bad roads and stuff like that. For that infrastructure, अगर मुझे घर खरीदने के लिए पर स्क्वायर फीट 40,000 50,000 रुपया लगाना पड़ता है, versus that I might get the same in outskirts of some of the other best cities of the world, I feel it is not value investing. You're, overpaying for something which is poor quality. You're paying more premium, like a quality city, to inferior quality of construction or infrastructure. The other way to think about this mathematically is look at interest rates in India. Interest rates are generally around 8% on a long-term basis. Forget the current होम number. लोन. तो आपने अगर कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लिया, तो हर साल आपको 8% मिलता है. उसके सामने the rental yield in India, in Mumbai particularly, is 2%, which means you can buy a home on rent, and the cost of that rent is only 2%, and the money that you're earning from your salary or business, if you invest in just a sovereign bond, you will earn around 7 to 8% on that. Number one. Number two, if you go one step further and add equity to it, generally over a long period of time, even if markets have gone nowhere or remained flat, over a long period of time, your SIPs earn between 9 to 10 or 11%. So 2% rental yield versus 9 to 11% yield that financial assets so far in India have offered. On top of it, personally, मुझे simplicity अच्छी लगती है rather than complexity. आई एम अ बिलीवर कि मेरा पैसा अगर मुझे वापस चाहिए 24 घंटे में मिल जाता है, तो मेरा म्यूचुअल फंड यूनिट 2 बटन दबा के मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है. मेरा एक बहुत ही छोटा घर था जो 20 साल पहले मेरे पिताजी ने लिया था, जस्ट अराउंड द टाइम आई वाज गेटिंग मैरिड. इट टुक 1.5 years टू सेल दैट एट द राइट प्राइस. उसके बाद उसको एंड वी नेवर लिव्ड इन दैट हाउस, सो 20 years ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टफ लाइक दैट, stamp duty, registration, all those hassles are there. So my bias is to first build financial assets, and it's not because of my role as the CEO of DSP, because my job is to make people invest in mutual funds, but I'm saying the decision should be a value decision, that are you buying that asset very expensive, because आपके पास अगर बहुत पैसा है तो then for emotional reasons by all means do that also, buy a home and also make investments. But आपके पास अगर constraints है, then in constraints you have to optimize, and the optimization should be a framework of this formula कि क्या आपका rental yield बहुत महंगा है, तो then buy own a house first through buying having a loan. बट अगर रेंटल yield सस्ता है और 2% के रेट पे भी आपको घर में रहने को मिल रहा है इन एनी लोकेशन ऑफ योर चॉइस, एंड सामने आपका पैसा 7 से 10% का रिटर्न कमा रहा है, देन यू आर गेटिंग दैट स्प्रेड. So first build your financial security so that your future is taken care of and you're not compromising on your present by staying in a house, if that house is decent, by staying it in a 2% rental yield structure, you're not compromising on your present, but you're also building your future. But if you were to do the reverse, where आपने घर खरीद लिया, एसेट खरीद लिया, बट सामने फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड नहीं हुई, then you're definitely compromising on your future. And in today's generation, I think this is again a personal choice. Many people say that we don't want to lock ourselves with assets, whether it is cars or jewelry or real assets. We prefer being more flexible and retaining that flexibility. We would like to live in different cities, acquire experiences rather than hard assets. Then all the more financial security becomes first priority. Yeah, fair enough. Yeah. Okay, so some very simple thumb rules for first time equity investors. आपने of course पिछले 45 minutes to an hour में हमें बहुत कुछ बताया है
Can you just summarize it in the form of basic thumb rules the first time investors should follow? Okay. So first, start with SIP in FlexiCap funds. Start with SIP in value funds. Do not invest in equity if your time horizon is less than 7 or 10 years. Stick to only hybrid and fixed income funds if your time horizons are less than 7 years, because there will be volatility. Don't take the present for granted. Whether the present is good or bad, remember this too shall pass. So if you are going through good times and good returns right now, the next phase will be poor returns and vice versa. Don't give up when returns are poor, because eventually they will normalize and become better. The best variable, the best fund manager is not any one of us, but time and your behavior. So there are many investors who end up earning the worst returns, even though उनका इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट फंड्स में है, क्योंकि वो जब फंड पीक पे होता है तब पैसा लगाते हैं, और जब फंड की साइकिल खराब होती है तब निकाल देते हैं. सो डोंट चेस पास्ट परफॉर्मिंग फंड्स, बिकॉज पास्ट रिटर्न्स आर नॉट योर्स. वो किसी और का है जिसने 5 साल पहले डाला था. योर रिटर्न्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. So, I think the last summary I'll say is that don't invest on past performance. And finally, have your portfolio across asset classes, because no asset class is a hero always. There will be cycles. When you're building a cricket team, you don't want 11 Shubman Gills or 11 Jadejas or 11 Dhonis. You need diversity. So diversification across sectors, across companies, across countries, across asset classes, all of this will help you keep your portfolio strong and healthy for long periods of time. And time is the most important variable. In the formula of compounding, amount is equal to principal 1 plus r divided by 100 raised to the power of time. It is T which has the highest impact, mathematical component, which is raised to the power of. R के आगे प्लस साइन है, P के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का जो साइन है वो टाइम के साथ है. तो टाइम is the most important variable. Keep that in mind. So, you were just talking about different asset classes, and I think one asset class that we have missed out on, and I think it's something that we should talk about, is one of the last few questions that I have for you. So, when it comes to debt as a category, a lot of investors would like to look at debt as a part of their portfolio, right? Debt funds में भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके के funds होते हैं. Liquid fund being the most common fund that a lot of us know about. तो आपके perspective से अगर as a first time investor मुझे थोड़ा allocation pure debt में करना है, what are the kind of funds that I can invest in? Okay, so Namrata, debt का allocation is a function of your time horizon. अगर आपका time horizon 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो liquid funds are the best. Liquid or money market funds are your only choice. Or even arbitrage funds. Think about arbitrage funds. Why am I saying that is because they have some extra tax benefits, but their behavior is like that of a debt fund. अगर आपका time horizon 5 साल का है या 10 साल का है, then liquid funds are not the best vehicles. It is like your goal is 10 years away, but you are parking your money in a savings or account or a fixed deposit. So that again doesn't make sense. So long term horizons के लिए जो debt चाहिए उसको आप hybrid fund के जरिए invest कीजिए. शॉर्ट टर्म नीड्स का जो डेट चाहिए उसे आप मनी मार्केट फंड्स या लिक्विड फंड के जरिए उसको आप यूटिलाइज कीजिए. सो योर टाइम होराइजन शुड डिटरमाइन हाउ डू यू चूज योर डेट फंड. दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल. द सेकंड स्लाइटली कॉम्प्लेक्स पॉइंट आई एम मेकिंग इज इफ यू वांट टू थिंक अ लिटिल बिट मोर न्यूआंस्ड इन दैट, डेट में भी 2 टाइप के फंड होते हैं. फंड्स विद शॉर्टर मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड फंड्स विद लॉन्गर मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स. सो लिक्विड फंड, low duration fund, money market fund, short term funds, all of them invest in instruments between a few months to 2-3 years. And then there are long duration funds. When interest rates fall, long duration funds earn higher returns. When interest rates rise, you lose money in long duration funds. So there are cycles. Slightly confusing thought here, but just bear with me. So when interest rates are low, you should choose shorter duration funds. When they rise and become high, you should start learning and choosing longer duration funds. So that is the second formula for deciding how do you think about debt funds. Okay, perfect. Thank you so much. So just one more question. आप इतने सालों से invest कर रहे हैं, right? You told us that you've been in this industry for more than since 98. So tell us about your learnings in the equity market, in your whole journey of investing. So let me tell you that I started in 98, and
actually 99 is when I came in the fund business. 98 I was in corporate treasury, and 99 is when, towards the fag end of the tech bubble, is when I came in. So like I said, mostly we take the wrong lessons. We learn the wrong lessons from markets in our early career. It takes a lot of time to learn the right lessons. I will in fact separately, maybe if you want, send you a link, and I would urge you to spread that link. It is from some fund manager sitting in Singapore whose link I read yesterday about what are the wrong lessons we learn from market. And when I read that long blog, I could see that ये तो मेरी बात कर रहा है. Because these are the lessons I've also learned in 98 and then 2003 and 7 and stuff like that. Now, the point I'm making is that when we invest and we see fast returns being made, we think it is our skill set which is making money, but it is actually the market becoming a bubble which is generating those returns. And generally, after that, you see the bubble crashing and NAVs falling and your portfolio values coming down. So, between 98 to 2007-8, my investing approach was basis headlines, basis stories, basing these popular narratives. Like, I'll give you a very crude example of this, and I still remember this. I'm brought up in a place called Borivali in Mumbai, which is in the suburbs. And my office this was North Mumbai. My office was in South Mumbai, other extreme. It would take me 2 hours to travel by road. So we all used to, 4 of us would carpool and go every day, and the roads were very bad. And the stories we used to tell ourselves and to even our investors were that देखिए इंडिया के रोड्स कितने खराब है, ये जब चाइना जैसे हो जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा बनेगा. And hence invest in infrastructure stocks. And actually 2005, 6, 7, 8 में जो infrastructure stocks popular हुए थे, अगले 10 साल में lot of them fell by 90%. And they just did not come back because their balance sheets were bad, their governance was bad, they were not the best companies. So what I'm trying to say is that I bought the stories, not the qualities of the company. That were these companies really worthy of investing? Did they have basic ROE? Did they have better quality managements? And were they friendly to their shareholders? What I did is I bought the narrative. I remember in 2000 when all tech stocks were booming and tech fund, we had launched a technology fund that time. In 6 months the NAV would double. And हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी में तो इनोवेशन हो रहा है और इंडिया टेक कंपनीज वर जस्ट इमर्जिंग. Infosys, Wipro had all they had just come into the market and they were becoming popular. They will rule the world. And these companies were some of the iconic companies that India has produced. So they do not, like those infra companies, qualify in bad companies. They are all great companies, great promoters. They've created wealth for their shareholders. But if I buy great companies at very high prices, which is what they had become in the year 2000, for the next 10 years, I didn't make money in those funds because the valuations had run up a lot. Something similar happened after COVID, when again everyone said that the world is becoming digital is going to take over. So stocks like Zoom and all went through the roof. Technology stocks in India went through the roof. Technology funds attracted a lot of money, and then in the next 1 year down 40%. So when we buy narratives, so that was my first experience, that don't buy narratives and rather look for understand risk क्या है investing में. तो मेरा 25 साल में तो ऐसे बहुत सारी learnings है, very difficult to explain in few lines, but one takeaway I would love to share with all the listeners is understand cycles, understand nothing lasts forever. There are cycles, there are phases. You should not get trapped by कि आपने महंगे ऊपर के भाव में एक हॉट थीम में पैसा लगा दिया and then you lose money. Number 2, don't buy without knowing what you're buying. Don't buy because किसी और ने आपको बोल दिया. फिलहाल ऐसा फेज है, मुझे याद है 1 साल 1.5 साल पहले people used to tell me that नया IPO आ रहा है, फ्रेंड्स ने बोला है खरीद लो पैसा बन जाएगा. And that's how most of us who start investing the first time, we rely on these type of tips to invest. They are the worst way to invest. Learn how to invest, be disciplined, don't chase returns. जब पहले 3 से 5 साल में always ask कि इस investing का risk क्या है, और अगर risk नहीं समझ आता है तो don't put money. Let me also tell you that in spite of all the discipline talk that I do, there were a lot of temptations कि यार आज के बच्चे आके क्रिप्टो में इतना पैसा बना के जा रहे हैं, they are making 500% in 1 year. Let me understand. I studied crypto. I read some long articles. I attended few conferences. वो सब करने के बाद फिर भी समझ नहीं आया कि क्रिप्टो में पैसा बनता कैसे है. Because समझ नहीं आया, I said I don't want to put my hard-earned money. I'm okay with my 10% long-term return. I'm willing to give this up.
Thankfully, in hindsight, it has saved me from losing a lot of money. But why did I not invest? Not because I'm a genius, because समझ नहीं आया. तो अगर समझ नहीं आता है, so do not invest your hard-earned money in anything, even if it may be a mutual fund or DSP. If you do not understand it, don't blindly invest. Don't look at returns on an Excel sheet and then just blindly invest because the returns look good. And remember that most asset classes, fixed income on a long-term basis should earn 7 to 8% returns because that's the prevailing interest rate. Long-term return on equity of corporate India is around 12 to 14% ROEs. So that is the reasonable rate of long-term return you should aim for. But if something is looking very glorious because of just one phase of 30% return in the last 2 years, that's not going to be the norm in the future. So have reasonable and rational expectations. You don't need very high rates of return. अगर आप सिर्फ 10 से 11% से भी अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में कंपाउंड कर सकते हो, दैट्स गुड इनफ टू बिल्ड अ गुड safety net. Yeah, perfect. Thank you so much. So, Kalpin, any book recommendations for our viewers? Yeah, I have one. So this is something that is the most recommended book I have learned a lot from. This is called The Art of Thinking Clearly. This book is a very simple explanation of a lot of life biases. हम जो decision making में हमारे errors करते हैं, a lot of errors we make in our day-to-day decision makings, not just investing decision makings. So there are so many of them. So there are 99 such errors that he has written about in very short 2 or 3 pages with good stories and examples. It tells you the type of mistakes we make जब हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की खोज में होते हैं, जब हम पास्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं, जब हम स्टोरीज के बेसिस पे एक अपने वर्ल्ड का व्यू बना लेते हैं, जब हम बहुत सारा डेटा देख के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने एनालिसिस ठीक कर दिया है. सो इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स है about how not to make errors. So I think this is a good starting point to learn about not just investing directly, but how to think. And investing is investing is about critical thinking. It's not about simplistic thinking investing is second order thinking. It's not first order thinking. To give an example, I'll just take the example of our conversation, how we started, that, India is growing very fast right now. Should we hence invest in equity? This is first order thinking. Good news, great data point, you should invest. Second order thinking, if Kalpin and Namrata both know about it, already priced in, आप महंगा खरीद रहे हो, think 2 times before you blindly invest. So that's second order thinking. So critical thinking and critical decision making is what we should learn a lot more rather than next 3 या 6 महीने में what fund looks good and stuff like that. The second good book to read to understand cycles of market is जो Howard Marks की किताब है, The Most Important Thing by Howard Marks. That is a very good book. I think I wish I had read that book 12 years earlier. I read it in 2008-9. I wish I had started my career and read that book. It is a must read, written in a very simple language. And then slightly difficult, complex reading is The Intelligent Investor. उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आप फॉर अ ले इन्वेस्टर, फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ये आपको बहुत सारी काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें बताती है. इट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट यू नेवर थॉट कि यार ऐसे भी देखना चाहिए. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग द अदर वे अराउंड. इट सेज that you should celebrate corrections, not market rallies. It has a very beautiful paragraph there where it says that have you, like in Indian context, do you see televisions channels or news channels or market related channels celebrating a correction of 20%? मान लो आज सेंसेक्स 60,000 है और वो 50,000 हो जाता है. Will you see cakes being cut, balloons being made to rise and celebrating, saying that you are able to get units today very cheap so that your future returns will be good? The whole world behaves opposite. It will celebrate if 60,000 goes to 70,000. So you actually need to be opposite. So it trains your mind to think the way it is right to think. It is not an easy read, which is why very few people read that book. People show off that book by keeping it on their bookshelves. But if you are able to cross that book, I think you will not need to attend my session ever again. Sure. Perfect. Thank you so much, Kalpin. Thank you for your time. I think the answers were wonderful, and I'm sure our viewers had a great time listening. Thank you, and all the best to all of you.
Wow, what a knowledgeable and engaging conversation that was with Mr. Parekh. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and please do wait for our next 2 episodes as well. तो जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे मैं क्विकली आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि Nasdaq and S&P 500 touched 9-month closing highs on June 1st. Of course, as signs of slowing wage pressure. जिसकी वजह से ये होप है कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक्स को पॉज करेगा. तो मिस्टर पारेख सेज कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. Then we also discussed about the fact that a stronger than expected fourth quarter lifted India's growth to about 7.2% in financial year 23, making India the fastest growing economy. So Mr. Parekh says कि अगर देखा जाए तो आज जो जीडीपी है उसका 10 साल बाद कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. अभी पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट्स इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक तो एसआईपी इनफ्लोज बढ़े हैं और एसेट एलोकेशन फंड्स के ऊपर फोकस बढ़ा है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि करीब 88% लार्ज कैप फंड्स ने जो है 5 ईयर टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है. तो एज एन इन्वेस्टर मैं एक सही लार्ज कैप फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मिस्टर पारेख सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं अगर उनको आउट परफॉर्म करना है तो उनको अपने बेंचमार्क से थोड़ा डिविएट करना पड़ेगा, लेकिन सही स्टॉक्स में का पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा टू बीट द बेंचमार्क इन द लॉन्ग टर्म. और अगर कोई फंड ऐसा कर सकता है देन इट कैन जनरेट अल्फा ओवर टाइम. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो काफी फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसेट एलोकेशन के साथ काफी स्ट्रगल करते हैं, तो हाइब्रिड फंड्स जो हैं क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं. तो मिस्टर पारेख सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं इक्विटी में उनको पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल ही नहीं पता होती है और इसीलिए अ लॉट ऑफ देम टेंड टू लूज मनी इन इक्विटी फंड्स. तो हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो एक जो इक्विटी कंपोनेंट होता है हाइब्रिड फंड का वो एक कार के एक्सेलरेटर के जैसे होता है और जो डेट कंपोनेंट होता है वो ब्रेक्स के जैसे होता है और एक सही बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है टू रीच योर डेस्टिनेशन विच इज द फाइनेंशियल गोल्स. फिर हमने थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया क्योंकि काफी लोगों को वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स के बीच में फर्क नहीं पता चलता है. तो मिस्टर पारेख गिव वेरी गुड एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम. तो ही सेज कि अगर आपको कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिसकी वर्थ 100 रुपया है लेकिन वो आपको 80 रुपए में मिल रही है, उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं. एज एन एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की बात करें तो मान लीजिए आपको एक विंटर जैकेट खरीदनी है जो आप समर में खरीद रहे हैं विच यू गेटिंग एट अ डिस्काउंट, उसको हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बोलते हैं. फिर हमने थोड़ा ये भी डिस्कस किया कि एक घर खरीदना वर्सेस स्टेइंग ऑन रेंट क्या बेटर होता है. तो मिस्टर पारेख सेज कि घर खरीदना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है. अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो घर खरीदना बहुत एक्सपेंसिव होता है और रेंटल यील्ड्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले जो है हमें अपने फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड करने चाहिए और फिर घर खरीदना चाहिए. फिर मिस्टर पारेख ने कुछ थंब रूल्स बताए फॉर फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स. तो ही सेज कि जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फ्लेक्सी कैप फंड्स और वैल्यू फंड्स में एसआईपी के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए. देन ही आल्सो सेज कि आपके पास कम से कम 7 से 10 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स. ऑल्सो जो टाइम और बिहेवियर होते हैं दे आर द बेस्ट फंड मैनेजर्स. ही ऑल्सो सेज कि आपको जो अपना पोर्टफोलियो अक्रॉस असेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स की जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करती है. फिर हमने मिस्टर पारेख से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा इन इक्विटी मार्केट्स एंड ही सेज कि नैरेटिव्स के पीछे मत जाइए, आप फंडामेंटल्स को देखिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में. डोंट बाय ग्रेट कंपनीज एट वेरी हाई प्राइसेस. ऑल्सो व्हेन यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि रिस्क आपका क्या है प्लस मार्केट साइकिल्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं. ही हैज वेरी सिंपल एडवाइसेस टू फॉलो. ही सेज कि जब आपको इन्वेस्ट करना होता है तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और ब्लाइंडली जो है रिटर्न्स को चेज मत करिए. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर शो. आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.